Hello students, welcome to Edviz Learning. My name is Yash Vaze and today we are starting 4.1 poem. A thing of beauty is joy forever. Name itself says something about it. A thing of beauty. What is beauty according to you? Hi, it's my question. What is beauty according to you? Just define in your mind like what exactly is beauty. Few may say or few may talk about external beauty. There might be few students who might be talking about internal beauty. Physical appearance can be a beauty, or mentally a person is strong. That can be a beauty. Nature can be a beauty, and there are so many things on this planet which are beautiful. Beyond this planet, even they are beautiful. What exactly are we talking about in this poem? A thing of beauty is joy forever. So, beauty is joy forever means, in short, beautiful things gives us joy, and that is a forever joy, immortal joy, which will be everlasting. So, when we see beautiful things in our life, we feel pleasant. Do you think so? Yes or no? I think yes, because when you see beautiful things, you are happy from inside. Just try an experiment, just smile for few seconds. Let's say for 30 seconds, just have a smile on your face. After 30 seconds, you will realize that there are few, chemically your body will have some changes that you will feel happy. Even after smiling for 30 seconds, when you feel happy, what about the beautiful things in life? So, the name of the poem is suitable here. A thing of beauty is a joy forever. And this poem is written by John Keats. Okay, so this is an image of this poet, John Keats. He was born in the year 1795 and passed away in the year 1821. An English poet, was one of the most popular of all British Romantic poets. So, he was an English poet who was the most popular of British Romantic poets. So, such sort of question is not asked, but still you must know that John Keats was regarded as a popular Romantic poet. Okay, so romance वाली चीज़ें तो इनकी poetry section में होंगी ही. His poems are characterized by imagery. Now, what is an imagery? Imagery means when you read something, you can imagine that thing in your mind. जब कोई चीज़ तुम read करते हो, तब mind में वो चीज़ imagine करते हो. For example, if I say there was a king, there was a queen, they used to live together in a huge palace. You can imagine those things, right? So, इसे कहते हैं imagery. From nature, so his poems are characterized by imagery from nature, यानी कि nature से related हो, that appeal to one's senses. The present poem is the first stanza of longer poem. एक बहुत बड़ी poem है, बहुत बड़ी. Okay, जिस poem का नाम है एंडीमियन. एंडीमियन नाम की एक बहुत बड़ी poem है, based on Greek mythology. जैसा हमारा माइथोलॉजी है वैसे ग्रीक माइथोलॉजी भी है. तो ग्रीक माइथोलॉजी में एंडीमियन नाम की एक पोएम है जो लॉन्ग पोएम है, एंड इसका सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा, ओनली द फर्स्ट लाइन हैज बिकम प्रोवर्बियल. फर्स्ट स्टैंजा की जो पहली लाइन है ये बहुत प्रोवर्बियल हो गई. एंड वो कौन सी लाइन है? द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1818. ये पोएम पहली पब्लिश हुई थी 1818 में. एंड अब वो लाइन कौन सी है जो प्रोवर्बियल हो गई? तो वही ये लाइन है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ओके, सो यू गॉट एन आइडिया और द बैकग्राउंड अबाउट इट. लेट अस रीड समथिंग मोर अबाउट दिस अमेजिंग पर्सनालिटी. इनके बारे में कुछ और पढ़ना चाहिए. एंड सी, so about the poet, something more about the poet John Keats, who was born in the year 1795, who passed away in the year 1821, was one of the most popular British romantic poet. ये तो तुमने देख ही लिया.
He lost his parents at a very young age. So इनके young age में इनके parents चले गए, यानी कि they passed away. And he was trained to be an apothecary. वो एक trained person थे to be an apothecary. Apothecary क्या होता है? One who prepares and sells drugs or compounds for medicinal purposes. Okay? जो पर्सन ड्रग्स को सेल करता है, कौन से ड्रग्स? जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, बाय हिज गार्डियन. ओके, सो वो कौन थे? वो ट्रेन पर्सन थे, गार्डियन से ट्रेन किए गए थे इस काम के लिए. हाउएवर ही डिसाइडेड टू राइट पोएट्री, बट उन्होंने अपने लाइफ में डिसाइड किया कि मैं पोम्स को लिखूंगा. एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में, whilst nursing his brother who had tuberculosis. So he was nursing his brother who was infected with tuberculosis. It is a type of disease. Okay, he too contracted it. And John Keats उनको भी अपने ब्रदर को नर्स करते वक्त, उनका देखभाल केयर करते वक्त, जॉन किट्स को भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है. Though he fell, means he too contracted it, whereas though he fell in love with Fanny Brawne. अब ये जो जॉन किट्स है, उनको प्यार हुआ फैनी ब्राउन से. ही कुडंट मैरी हर, बट वो उनसे शादी नहीं कर पाए. एंड ही फाइनली डाइड एट द यंग एज ऑफ 25 ईयर्स. 25 साल की उम्र में, 25 ईयर्स की एज पे, बहुत ही यंग एज होता है ये. ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो जाती है. किसकी? जॉन किट्स की. जस्ट प्रायर टू हिज डेथ, अब मरने से पहले, he published his last and best collection of his poems, Lamia Isabella. तो ये जो लामिया इजाबेला है, वो उनकी लास्ट पब्लिकेशन है, बेस्ट कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स में से एक मानी जाती है. आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल हियर about everything about the author, let's say whatever is required about the author or the poet especially, and some sort of background. I'll let you know few more things so that your concept or the viewpoint, or we can call it as perspective, at looking towards this poem will be, refined. Anyways, in Greek mythology, there is a character called as Selene. She is goddess Selene. She is also considered as moon goddess. अब हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें मून, ये जो है चंद्रमा जिसे कहते हैं, ही इज कंसिडर्ड एज अ मेल मेंबर. बट इन ग्रीक माइथोलॉजी, मून इज कंसिडर्ड एज फीमेल जेंडर. उन्हें गॉडेस मून कहा जाता है, जिन्हें सिलीन बोलते हैं. वंस अपॉन अ टाइम शी फेल इन लव विद अ शेफर्ड. वो एक शेफर्ड से उसे बहुत प्यार हो जाता है. यू माइट बी वंडरिंग, शेफर्ड कौन होता है? जिसे हम गवाला कहते हैं, यानी कि द वन हु टेक्स शीप फॉर ग्रेजिंग पर्पस, जो शीप को ग्रेस कराने के लिए, चारा चरने के लिए लेके जाता है. सो उसे शेफर्ड से प्यार हो जाता है. शी फेल्स इन लव and she thinks like, I should be looking, I should be, I want to see that person for lifetime, means everlasting thing I want in him. So please, there should be something like that I could see this shepherd forever, because that shepherd was handsome. बहुत ही हैंडसम शेफर्ड था. इतना हैंडसम. एनीवेज, वी कैन कॉल दिस थिंग एज ब्यूटी. ओके, वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर शेफर्ड था. सो गॉडेस सिलीन वांटेड टू सी दैट शेफर्ड एंड शी विश, काश मैं इस शेफर्ड को हमेशा हमेशा ऐसे ही देखती रहूं. शी अप्रोचेस गॉड जुपिटर एंड शी आस्क्स दैट प्लीज प्रोवाइड मी सच सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग दैट मैं इस शेफर्ड को देखती रहूं. Anyways, at the latter stage, that blessing was granted, but there was a condition कि वो shepherd unconscious state में होगा. Anyways, goddess Selene accepted it, but she wanted to see that beauty,
एंड ब्यूटी से उन्हें क्या मिल रहा था? तो जॉय मिल रहा था, खुशी मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रहा था. सो इन द सेम वे हियर दैट शेफर्ड इज कंपेयर्ड समवेयर गॉडेस सिलीन की जो स्टोरी है, ये जो एंडीमियन है वही तो वो शेफर्ड है. एंड एंडीमियन क्या है? ये लॉन्ग पोएम है. इस लॉन्ग पोएम का जो पहला स्टैंजा है तो यही वो पोएम है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पब्लिश की है. उसकी जो पहली लाइन है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. आई होप सो इट इज क्लियर नाउ. सो हमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं नेचर से. सी वी एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल आर कनेक्टेड टू नेचर. सो नेचर से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जॉय प्रोवाइड करते हैं, खुशी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं. तो कौन सी चीजें हैं, क्या है? लेट्स सी इन द पोएम. सो हम लोग वाइज इसे देखते हैं. यानी कि लॉन्गर पोएम का एक स्टैंजा है, स्टार्टिंग स्टैंजा, बट उसको छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग कवर करते हैं. सो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. यानी कि कोई भी चीज जो ब्यूटीफुल होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स अस जॉय. ओके, दिस पोएम इज बिट टफ कंपेयर टू द अदर पोएट्री सेक्शंस. सो यानी कि अदर पोएम्स आई वुड से इससे वो टफ है थोड़ी. देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स दैट यू मस्ट मार्क बिकॉज ऑल द मीनिंग्स आर इंपॉर्टेंट. टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मीनिंग्स. जो भी डिफिकल्ट वर्ड तुम्हें लगेगा इस पोएट्री सेक्शन में है, that all the words along with the meaning is provided in the glossary section. So I request you to note it. Okay, its loveliness increases. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Okay, so यानी कि इसका मतलब क्या होता है? Its loveliness मतलब beauty. Beauty ये बढ़ती है, कभी कम नहीं होती. Okay, beauty is always increasing. It will never pass into nothingness means it will not fade. Beautiful चीजें कभी fade नहीं होते. We are talking about nature here. So nature की जो beauty है वो कभी fade नहीं होती, but still will keep a bower quiet for us. But still will keep a bower. Bower का मतलब क्या होता है? A pleasant shady place under trees or a climbing plants. यानी कि जो ट्री होता है, ट्री के नीचे जो शेड होता है. Okay, when someone goes and sits under the tree, okay, shade, we get shade. बहुत ही scorching sun है, and scorching sun की heat से means that heat is not bearable. But when you get a shady place under a tree, when you go and sit there, that's so beautiful. There is a pleasant feeling you get at that time. सो बॉवर वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है एक शैडी प्लेस के लिए जो ट्री के अंडर शेड मिलता है. सो बट स्टिल विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप. एंड वहाँ पे सोने का कुछ और ही मजा है. ओके, नॉर्मली व्हेन यू स्लीप ऑन बेड एंड इफ यू स्लीप इन अ शैडी प्लेस, उसका प्लेजेंट फीलिंग कुछ और ही है. फुल ऑफ ड्रीम्स, वहां पे सोने के बाद क्या होगा? फुल ऑफ ड्रीम्स में होंगे. यानी कि इसी का मतलब है यू विल स्लीप पीसफुली. तुम्हें कैसी नींद मिलेगी? पीसफुल स्लीप मिलेगी, राइट? एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? हैप्पीनेस भी मिलेगा, अच्छा हेल्थ होगा एंड क्वाइट ब्रीदिंग होगी. ओके, अच्छा ब्रीथ, फुल ऑफ ऑक्सीजन, हेल्थ भी अच्छी होगी, जॉय होगा, हैप्पीनेस होगा, एवरीथिंग. Therefore, on every morrow means what? The following day. Okay, कल का दिन, tomorrow. Are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? Are we wreathing मतलब here weaving with flowers. हम लोग क्या बना रहे हैं? Flowers से weaving कर रहे हैं, flowers को weave कर रहे हैं. एंड उससे हम क्या बना रहे हैं? एक flowery band बना रहे हैं. Okay, to bind us to the earth. To bind means to fasten. क्या करने के लिए? उसे tie करने के लिए, किसे? earth को. Okay, earth has provided so many things to us. So we are binding a flowery band to bind us to the earth. जिससे हम क्या कर रहे हैं? फ्लावर से कनेक्ट होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं. Spite of despondence. Spite of despondence means what? In spite of despair. Sometimes, see, we are connected to this earth. हम लोग अर्थ के लिए फ्लारी बैंड बनाते हैं, हम लोग इससे कनेक्शन बनाते हैं. मीन्स वी आर मेकिंग कनेक्शन विद द नेचर.
नेचर मीन्स अर्थ, अर्थ से कनेक्शन बनाते हैं। इस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्पेयर में होते हैं, डिस्पेयर डिस्पॉन्डेंस में होते हैं। डिस्पॉन्डेंस मीन्स डिस्पेयर, सैड होते हैं, कभी डिप्रेस्ड होते हैं। ओके, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। ओके, लैंग्वेज इज बिट टफ यू नो टू अंडरस्टैंड, सो पे अटेंशन एंड कंप्लीट अटेंशन होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। ओके, टू ईच एंड एवरी वर्ड यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो कभी कभी क्या होता है लाइफ में, डिस्पॉन्डेंस होता है यानी कि डिस्पेयर होता है, यानी कि सैडनेस होता है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन क्रूएल। ओके, डर्थ मीन्स शॉर्टेज। सी देयर इज क्रूएल्टी इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कभी कभी क्या होता है, हम सैड होते हैं, क्यों? बिकॉज क्रूएल पीपल एग्जिस्ट एंड देयर इज लैक ऑफ व्हाट, शॉर्टेज। डर्थ मीन्स लैक, शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ व्हाट, नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स मतलब क्या होता है, गुड पीपल। हमारी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। ओके, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ द ग्लूमी मीन्स सैड डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, ग्लूमी डेज आ जाते हैं अभी, बट ऑब्वियस है कभी क्रूएल लोगों से तुम मिलोगे तो हैप्पीनेस तो मिलेगा नहीं, यू आर गोइंग टू गेट सैडनेस, उसकी वजह से तुम्हें सैडनेस ही मिलेगा, यानी कि हैप्पीनेस तो नहीं मिल सकता। सो यू हैव ग्लूमी डेज इन योर लाइफ। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ओवर डार्कन मीन्स worst ways. Worst ways means what? Due to that, as you are sad. Now, what to do? When a person is sad, he thinks about few sort of things which are unhealthy for him. Okay, when you are sad, what to do? There is no way of coming out of it. So, person is already, sad, depressed. At that time, he thinks of going towards an unhealthy manner or unhealthy way. Means what? People, they might be smoking, they might be consuming alcohol, and all the bad habits, might be drugs, might be anything. So these habits might be inculcated in a person if that person is sad, most probably. It doesn't mean like a person who is happy may not go towards that side, but obviously a person who is happy will also go towards the consumption of alcohol and all. But generally a person who is sad, lot of days, gloomy days in his life, there are many days and he is all the days he is sad, he will move towards unhealthy and over darkened ways, means worst ways he will have in his life, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Means made for our searching, हम इन्हें सर्च करें तो यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीजें अगर लाइफ में हो तो भी एक चीज है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी है, मूव्स अवे। मूव्स मतलब रिमूव्स। जब एक पर्सन ब्यूटी को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, तो ये सारे बैड चीजें, ये जो खराब हैबिट्स है, वो चले जाते हैं। द पाल, पाल मतलब हियर डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूम और सफरिंग, तो इट रिमूव्स द पाल। ये पाल को, यानी कि ग्लूमी डेज को, इन बैड सिचुएशंस को, सैड सिचुएशन को, डार्क क्लाउड्स ऑफ ग्लूम को या सफरिंग्स को रिमूव कर देता है। कौन रिमूव कर देता है? ब्यूटी रिमूव कर देती है इन सारे चीजों को। ओके, सो ब्यूटी इज रिमूविंग दिस थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। और किस चीज से? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मतलब अनहैप्पी लाइफ से। ओके, दिस इज इन कंटिन्यूशन, यहां पे फुल स्टॉप है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शैडी बून। मीन्स हमें बहुत सारी चीजें जो है वो ब्यूटीफुल है, ओके, इन नेचर। जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज है, ओल्ड एंड यंग, एंड स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मीन्स व्हाट? गिविंग अ शैडी बून। शैडी मतलब शेड, जो हमें शेड देते हैं, बून देते हैं। ये एक बून है, गिफ्ट है, ब्लेसिंग है हमारे लिए। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। मीन्स फॉर अ सिंपल शीप। अब ये जो ट्रीज है वो किसे, जो भी यंग एंड ओल्ड ट्रीज है वो किसे शेड प्रोवाइड करते हैं? तो सिंपल शीप को शेड प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे शीप का मतलब ये वाले शीप नहीं है, ओनली दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस शीप। ओके, शीप मीन्स every one of us. A person who goes under a tree will be getting a shady boon. Okay,
सो एंड सच आर डैफोडिल्स, एंड इन्हीं तरीके से जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स कौन है, ये फ्लावर्स है, ओके, डैफोडिल्स आर फ्लावर्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो कहाँ रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, सो डैफोडिल्स है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड है, क्लियर रिल्स है, क्लियर रिल्स मीन्स व्हाट, रिल्स मीन्स स्ट्रीम, ओके, जो छोटी नदी होती है, रिवर होती है, very short river, we can call small river, not short, small river or small stream, it is called as rills in English, that for themselves a cooling covert make, तो वो सारी चीजें डैफोडिल्स है, क्लियर रिल्स है, एंड ये सारी चीजें क्या करते हैं, तो फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ट रहते हैं, कवर्ट मतलब शेड, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन से ये हमें बचाते, कैसे, तो ये कूलिंग शेड प्रोवाइड करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब है फर्न्स, थिकेट्स, ओके, जो छोटे छोटे बुशेस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, थिकेट होते हैं, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो नेचर में क्या और चीजें हैं, तो रिच विथ स्प्रिंकलिंग मतलब स्कैटरिंग, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज क्या है, एक टाइप ऑफ फ्लावर है, एक टाइप का रोज का फ्लावर है, तो ये ब्लूम करता है, ब्लॉसम करता है नेचर में, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, एंड सच इज द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ग्रैंड, तो ऐसी ही एक ग्रैंडनेस, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स मतलब लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस, नोन और डिस्प्लेड, मतलब जो आखिरी टाइम हो लाइफ का, जब डेथ पास में आ जाती है, तो ये सारी चीजें ब्यूटीफुल है। सी पोएट इज ऑल्सो सेइंग अस दैट ये डेथ वाला जो पार्ट है ये भी ब्यूटीफुल है, ओके, जो जजमेंट डे है ब्यूटीफुल है, मस्ट रोज ब्लूम्स ब्यूटीफुल है, ओके, तो ये ग्रैंडियर ऑफ डूम, ग्रैंडियर मतलब क्या, ग्रैंड प्रोग्राम, ग्रैंड चीज होनी चाहिए डेथ भी, ओके, नॉट लाइक नॉर्मल बीइंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी मीन्स पावरफुल डेड, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुने ग्रेट वॉरियर्स की, इनकी डेथ कैसे हुई, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत, वी हैव ग्रेट पर्सनालिटी हु फॉट वेरी हार्ड, स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड हिज डेथ is considered as beauty, which is providing example to the others that what sort of strength that man possessed. He gave lot of, amazing personality, great personality, Abhimanyu. So about the Chakravyuh and about lot of things you might have studied, but his death is considered as great, grand, great. The way he fought is considered as great. So in the same manner, we have imagined for the mighty dead, mighty means powerful dead, all lovely tales, tales का मतलब होता है stories that we have heard or read, इनके बारे में बहुत सारी great stories हम लोग ने read की है, an endless fountain, but see moon sun, these tales of mighty dead, ये हमें क्या, ये beauty है, ओके, ये beauty है, बट इससे भी ज़्यादा कौन सी चीज़ है, तो इससे भी ज्यादा एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस मीन्स कंटिन्यूस फाउंटेन है, फाउंटेन मतलब जो वाटर जो स्प्रिंकल होता है, फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब नेवर डाइंग, जिसे हम लोग अमृत बोलते हैं, तो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, हेवंस ब्रिंग, ब्रिंग मतलब एज, जो कॉर्नर होता है, एज, फ्रॉम दैट, सो उस एज से हमारे सोल में एक अमृत जा रहा है, मीन्स गॉड इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस विथ सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, ये ब्यूटी सबसे बड़ी ब्यूटी है, ओके, नॉर डू वी merely फील दिस इसेंस, merely मतलब ओनली, इसेंस मीन्स मेन पॉइंट, फॉर वन शॉर्ट आवर, बट वी नेवर थिंक अबाउट दिस ब्यूटी इवन फॉर अ सिंगल आवर, एक घंटे के लिए हम लोग कभी सोचते नहीं इन ब्यूटीफुल चीजों के बारे में, कभी नहीं सोचते, डू वी हैव टाइम फॉर दैट? No, we are always calculating our shortcomings. We are always calculating about what I didn't get in my life. मुझे क्या नहीं मिला, इनके बारे में हम लोग बहुत बार सोचते रहते हैं,
मैं ऐसा क्यों नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मुझे क्यों नहीं मिला, इसके बारे में सोचते. बट डू वी थिंक लाइक व्हाट वी गॉट इन आवर लाइफ, blessings, about our strength, about our capabilities, about what I possess, what God has given me, what beauty I possess, or I have this thing, I have that thing, I am so much blessed. We never think about these things in our life. No, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple self, so does the moon. Okay, so जैसे इसी तरीके से जो भी ट्रीज है जो विस्पर राउंड अ टेम्पल, विस्पर मतलब टॉक साइलेंटली, यानी कि जो ट्रीज टेम्पल के पास होते हैं वो कुछ दिनों के बाद टेम्पल की तरह ही हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं. मीन्स इन शॉर्ट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दिस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. व्हेन यू गो टू टेम्पल, समटाइम्स एन आइडल इज प्लेस्ड. ओके, पीपल स्टार्ट वर्शिपिंग दैट आइडल. There are few trees around that temple, but slowly and gradually, see, tree is not considered as God. But after few days, months, year, people start visiting that particular temple and they even pray to the trees. Okay, they are offering flowers to the trees. And even the tree becomes, the part of the temple. So in the same way, so does the moon. Why the word moon is used here? With the reference to, as I said, goddess ओके, इसी तरीके से मून जो है इनका कनेक्शन है, किस चीज से कनेक्शन है? द पैशन, पोएजी, ग्लोरी, इन्फिनाइट. द पैशन मतलब क्या होता है? पैशन, पोएजी. सी मतलब पोएट्री, वी कॉल इट एज पोएट्री. लेट अस कंसिडर पैशन मीन्स पैशनेट. सो पैशन, पोएजी का मतलब पोएट्री है. तो एन एंथुसियास्टिक पोएट, वी कॉल इट टुगेदर एज एंथुसियास्टिक पोएट. ग्लोरीज मीन्स ऑनर, इन्फिनाइट. उसे क्या मिलता है? ऑनर मिलता है. ऑनर, इन्फिनाइट. हॉन्ट अस टिल दे बिकम अ चीयरिंग लाइट. हॉन्ट मीन्स फ्लाई अराउंड अस टिल दे बिकम अ चीयरिंग लाइट. चीयरिंग लाइट मीन्स मेकिंग हैप्पी. ओके, हमें हैप्पीनेस मिले तब तक हमें हॉन्ट करती चीजें. यानी कि जैसे ही सो डज द मून, द पैशन, प्लोजी, ग्लोरीज, इन्फिनाइट. मतलब इसी तरीके से जो मून है वो हमें क्या देता है? हॉन्ट अस टिल दे बिकम चीयरिंग लाइट अनटू आवर सोल एंड बाउंड टू अस सो फास्ट दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम ओवरकास्ट. वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम ओवरकास्ट मतलब स्प्रेड अबाउ, कवर्ड विथ. तो हमें मून भी क्या देता है? ब्राइटनेस देता है हमारी लाइफ में. उसकी वजह से हमें चीयरिंग लाइट मिलती है. बाउंड टू अस सो फास्ट, एंड इससे हमारा कनेक्शन बनता है बिकॉज ये नेचर का एक पार्ट है. दैट वेदर देयर बी शाइन, वो शाइन करे या ओवरकास्ट करे, यानी कि ओवरकास्ट मतलब क्या? स्प्रेड अबाउ, कवर्ड विथ. दे ऑलवेज मस्ट बी विथ अस, बट वो हमारे साथ रहता है, हमारे कॉन्टैक्ट में रहता है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ नेचर. और वी डाई, चाहे हम मर भी जाए तो भी. यानी कि ब्यूटीफुल चीजें हमारे साथ हमेशा हमेशा होती है, एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. And they are always providing us immense joy and happiness. Okay, so ये जो last part है इसका, ये थोड़ा सा इधर उधर होता है बिकॉज ये इसका रिलेशन किससे है? गॉडेस सिलीन से है, राइट? सो आई विल मेक यू ऑल द थिंग्स क्लियर अगेन इन अ वेरी शॉर्ट समरी. हम लोग इसका शॉर्ट समरी देखेंगे कि किस तरीके से पोम का लास्ट पार्ट या किस तरीके से गॉडेस सिलीन से इसका कनेक्शन है. ओके, सो दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन किट्स. आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. पैराफ्रेज देखते हैं इसका, यानी कि इसका इन शॉर्ट समरी और सेंट्रल आइडिया. ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो. द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज अ क्लासिक कंपोजिशन बाय जॉन किट्स एंड इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड ऑफ एंडीमियन. The moon goddess Selene falls in love with the beauty of an ordinary mortal shepherd. उससे प्यार होता है एक mortal. Mortal मतलब the one who will die. And immortal मतलब क्या होता है? The one who will not die. Shepherd, Endymion, जिसका नाम होता है Endymion, and request Jupiter, the king of the gods, to make him immortal. Okay, कि वो Endymion को immortal बनाए.
so as to preserve his youth forever, जिससे वो हमेशा यंग रहे, ब्यूटीफुल रहे, हैंडसम रहे. Jupiter grants her desire, but the only way to do so is to put Endymion to everlasting sleep. एक ही वे था कि वो everlasting sleep उसे unconscious state में कर दे, so that his beauty can be immortalized, so that उसकी beauty हमेशा हमेशा के लिए रहे, वो कभी मरे ही ना, वो इसी तरीके से ब्यूटी रहे और वो गॉडेस सिलिन उसे देखती रहे, लाइक दैट. दिस पोएम डिस्क्राइब्स ब्यूटी एज बीइंग इमॉर्टल. देखो अभी इसका कनेक्शन देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस ग्रीक माइथोलॉजी का इसके साथ कनेक्शन कैसा है. सो दिस पोएम डिस्क्राइब्स ब्यूटी. अब ये जो पोएम है वो हमें ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है एज बीइंग इमॉर्टल, कि ये जो ब्यूटी है वो भी इमॉर्टल है. कैसे? जैसे एंडीमियन इमॉर्टल हो गया, वैसी यानी कि उसकी ब्यूटी इमॉर्टल हो गई, वैसे जो ब्यूटी होती है वो खुद इमॉर्टल है. एंड दैट विच ब्रिंग्स एवरलास्टिंग हैप्पीनेस. एंड ब्यूटी, हम ब्यूटीफुल चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिलता है, पीस मिलता है, हेल्थ मिलता है टू दोज हु नोटिस इट. ओके, सो मैन एंड नेचर आर इनसेपरेबल. ईच मॉर्निंग मैन लुक्स एट थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन नेचर एंड बाइंड्स हिमसेल्फ टू इट. उससे वो बाइंड हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, एंड डिराइव्स पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम इट. ओके, नो डाउट देयर इज सफरिंग एंड ग्लूम अराउंड हिम, बट नेचर अराउंड मेक्स हिम cheerful and look beyond all these trials by inspiring him to live meaningfully. Okay, उन्हें मोटिवेट करता है जीने के लिए. The beautiful things in nature such as the moon, the stars, the sun, the trees, etc. are gifts to man. ये सारी चीजें क्या है? मैन के लिए गिफ्ट्स है. ओके, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स है. Besides other things like beautiful plays, इसके अलावा ये जो प्लेज है, ओके, पोम्स है, heroic deeds of great men है, the rewards that will be bestowed on man on judgment day. ओके, इसके अलावा जो रिवॉर्ड्स है जो कि मैन को मिलेंगे जजमेंट डे पे, तो कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे मैन को जजमेंट डे. जजमेंट डे मतलब फाइनल डे, डेथ का डे है जब डिसाइड किया जाता है जो यू नो लाइफ में जो भी वर्च्यूज एंड वाइसेस, जो भी पाप और पुण्य जो भी किए है, तो ये जजमेंट डे. टेल्स ऑफ ओल्डन डेज, जो टेल्स है ऑफ ओल्डन डेज एक्सेट्रा, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू मैन. इनसे सबसे मैन को क्या मिलता है? एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिलता है. बट नन ऑफ दीज आर प्रीशियस एज द गिफ्ट फ्रॉम नेचर. बट इनमें से सब कोई इतना प्रीशियस नहीं हो सकता जितना गिफ्ट फ्रॉम नेचर विच आर लाइक नेक्टर. ये एक नेक्टर की तरह है, अमृत की तरह है, दैट इज कॉन्स्टेंटली पोर्ड फ्रॉम हेवन, जो हमें स्वर्ग से मिलता है, मैन के सोल में जाता है. ओके, दस द पोम सेंटर्स ऑन द थीम. ये लास्ट पार्ट है पोम का, जो लास्ट पार्ट हम लोग ने देखा था. दस द पोम सेंटर्स ऑन द थीम दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर इमॉर्टल. ब्यूटीफुल थिंग्स इमॉर्टल होते हैं उस किस्से के बाद से. ओके, एंड दे गिव अस इमेंस प्लेजर. मतलब जैसे गॉडेस सिलीन को प्लेजर मिला, यानी कि हैप्पीनेस मिला, शी बिकेम हैप्पी, जॉय मिला ब्यूटीफुल चीज को देख के, वैसे ही हमें आज कोई भी ब्यूटीफुल चीज को देख के हमें भी जॉय मिलता है, प्लेजर मिलता है, हेल्थ मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती है. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. दिस आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. थोड़ी सी पोएम टफ है तो अच्छे से समझना इसे. इसके एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. गो थ्रू वार्मिंग अप, साइड क्वेश्चंस, मीनिंग्स, English workshop, go through everything, understand the paraphrase very well, understand each and every stanza very well, each and every line very well, and you need to, but obvious, study figures of speech, appreciation of poem very well, and then it will be really, really easy. I hope so. Session was interesting. In the same manner, keep watching such sessions. Have a good time, good day, enjoy. Bye bye. Thank you.